નમસ્કાર ભાઈઓ બહેનો, ટાટ સેકન્ડરી હિન્દી મુખ્ય પરીક્ષા 2026ની તૈયારી કરતા તમામ ભાઈઓ બહેનોનું હું ગણિતીય પ્રવીણભાઈ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ભાઈઓ બહેનો, આપણે ટાટ હાયર સેકન્ડરી પરીક્ષા હમણાં જ પૂરી થઈ છે, તો એ પ્રશ્ન પેપરને ધ્યાનમાં રાખીને જે જરૂરી હતા એવા કેટલાક મહત્ત્વના પ્રશ્નો છે તમારી સમક્ષ રાખવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ચોથા પ્રશ્નની અંદર 15 પ્રશ્નો છે એ એક વાક્યના છે પૂછાતા હોય છે. એમાંથી વ્યાકરણના પણ ઘણા બધા પૂછાય છે, પાઠને લગતા પણ પ્રશ્નો પૂછાય છે અને ક્યારેક પદ્ધતિમાંથી પણ એક બે અને વ્યાકરણમાંથી પ્રશ્નો આવતા હોય છે. તો ખાસ તો પાઠમાંથી પ્રશ્ન જો આવે તો આપણે 1 માર્ક્સ ન જાય એ માટેની તકેદારી ધ્યાનમાં રાખીને આપણે ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના ગદ્ય અને પદ્યના બધા 1 માર્કનો એક અલગ તારવી અને તમારી સમક્ષ આ વિડીયો મૂકવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે, જે તમારી પરીક્ષા માટે તમને ખરેખર ઉપયોગી થશે. તો એ બાબત આ ઉપરાંત ધોરણ 9 અને 10નું વિષયવસ્તુ અને પદ્ધતિશાસ્ત્ર જે ખૂબ મહત્ત્વનો કહી શકાય, કારણ કે ટાટ હાયર સેકન્ડરીમાં પણ 18 થી 19 માર્કનું છે એ પ્રશ્નો પૂછાયેલા હતા અને ખૂબ તકલીફ પડી હતી લખવામાં. તો એ બધાની જો તમારે PDF જોતી હોય તો પણ તમને છે એ મળી શકશે. આપણે સૌ જાણો છો કે PDF મેળવવા માટે તમારે કેટલીક પ્રોસેસ એ કરવાની છે, તે આ પ્રમાણે રહેલી છે. PDF માટે ધોરણ 9, 10 અને હિન્દી પદ્ધતિશાસ્ત્ર એ ત્રણેય થઈ અને એની કોમ્બો ઓફર છે 299 રૂપિયા. આમ 9ની 99 રૂપિયા છે, ધોરણ 10ની વિષય વસ્તુના 99 છે અને પદ્ધતિશાસ્ત્રના 149 રૂપિયા છે. પણ આ ત્રણેય સાથે મળીને તમને 299 રૂપિયામાં મળશે. અહીં જે વોટ્સએપ નંબર આપેલો છે તેમાં તમારે મેસેજ કરવાનો રહેશે અને એ દ્વારા તમને તમારા વોટ્સએપમાં PDF મળી રહેશે. તો હવે જોઈએ આપણે ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના પહેલા કાવ્યથી લઈ અને એના ટૂંકમાં જે પ્રશ્નો છે, એટલે કે 1-2 માર્કમાં જે પૂછાવાના છે તેની માહિતી. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ધોરણ 9ની અંદર પહેલું ચેપ્ટર છે આરાધના. આ કાવ્યથી જોઈએ આપણે. સૌથી પહેલાં છે નિમ્નલિખિત પ્રશ્ન કે ઉત્તર એક વાक्य में लिखिए. પહેલો પ્રશ્ન છે, कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? उत्तर है, कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं जिसे सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना हो. बीजो प्रश्न है, कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं? तो तेनो जवाब है कवि दुखी लोग और दुखों से मुक्त हो ऐसी मनोकामना चाहते हैं. तीजो प्रश्न, कवि दुर्बलों के रक्षण किसकी साधना चाहते हैं? तो एनो जवाब है कवि दुर्बलों के रक्षण पौरुष की साधना चाहते हैं. चौथो प्रश्न है, कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? तो एना जवाब में कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं. पांचवो, कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं जिससे सब स्वतंत्र होकर भी भाईचारे की भावना से जुड़े हो. ત્યારબાદ વધારાનો પ્રશ્ન છે, કસ્તુરી કहाँ रहती है? તો તમને સાધ્યમાં નહીં જોવા મળે પણ કાવ્યના આધારે આપણે બનાવેલો છે. તો કસ્તુરી મૃગ की अपनी नाभि में रहती है. ત્યારબાદ છે બીજો પ્રશ્ન, सबसे श्रेष्ठ धन कौन सा है? तो संतोषी सबसे श्रेष्ठ धन है. बीजो पार्ट છે न्याय मंत्री, એના પ્રશ્નો જોઈએ. शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा क्यों खोल दिया? उत्तर है, एक अतिथि को शाम के अंधेरे में आश्रय के लिए आया देखकर शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा खोल दिया. बीजो प्रश्न, शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? उत्तर, शिशुपाल सच्चा न्याय कैसा होता है यह दिखाने की अवसर की तलाश में था. तीजो प्रश्न, न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? उत्तर है, शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अन्याय और अपराध करने का साहस न कर सके. चौथा प्रश्न, परदेशी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? उत्तर, परदेशी स्वयं सम्राट अशोक था. दूसरे दिन सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदाई ली. 4 प्रश्न, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? उत्तर, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर नियुक्त के रूप में राजमुद्रा दी. 6 प्रश्न, राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियां कैसे बदल गई? तो शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी. किसी को किसी प्रकार का भय न था. 7,
पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई? उत्तर, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिए। 8वां प्रश्न, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। ત્યારબાદ ચેપ્ટર નંબર 3, क्या નિરાશ હોવા જાય એનો પ્રશ્ન છે, એક એક માર્કનો। आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं? उत्तर, आज समाचार पत्र में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। बीजो प्रश्न, देश का वातावरण आज कैसा बन गया? देश का वातावरण आज ऐसा बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा है। तीजो प्रश्न, भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया? उत्तर, भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं को संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया। चौथा प्रश्न, मनुष्य के मन में कौन कौन से विचार है? उत्तर, मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार है। पांचवा प्रश्न, भारतवर्ष किसको धर्म रूप में देखता आ रहा है? तो भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था? बस कंडक्टर खाली बस लेकर तथा उस लेखक के बच्चे के लिए पानी और दूध लेकर लौटा था। बीजा વધારાના પ્રશ્નો, धर्म और कानून में क्या अंतर है? तो धर्म और कानून में यह अंतर है कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को धोखा दिया जा सकता है। बीजो प्रश्न, धर्मभीरु लोग किस बात में संकोच करते हैं? तो धर्मभीरु लोग कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच करते हैं। तीजो प्रश्न, किन घटनाओं को उजागर करना बुरा नहीं है? तो लोगों के मन में अच्छाई के प्रति भावना जगाने वाली घटनाओं को उजागर करना बुरा नहीं है। चौथा प्रश्न है, ड्राइवर को मार पीटने से किसने बचाया? तो ड्राइवर को मारपीट से लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बचाया। चैप्टर 4 से कर्ण का जीवन दर्शन। पहला प्रश्न, कर्ण की एकमात्र इच्छा क्या है? कर्ण की एकमात्र इच्छा है कि उसके हाथों से सदा दान की निर्मल सरिता बहती रहे और निर्धनों के दुख करती रहे। बीजो प्रश्न, किस तरह के लोग कंचन का भार नहीं ढोते? तो कर्ण जैसे दानी पुरुष कंचन का भार नहीं ढोते। तीजो प्रश्न, कर्ण स्वयं को किसके समान बताता है? तो कर्ण स्वयं को पक्षीराज गरुड़ के समान बताता है। चौथा प्रश्न, कर्ण को कौन सा अहिपाश काटना है? तो कर्ण को दुर्योधन पर आई विपत्ति रूपी अहिपाश काटना है। पांचवा प्रश्न, वैभव हेतु ललचाने का क्या परिणाम होता है? वैभव हेतु ललचाने का यह परिणाम होता है कि लालच ही मनुष्य को नष्ट कर देता है। त्यारबाद छठो प्रश्न, दानी पुरुषों का स्वभाव कैसा होता है? उत्तर, दानी पुरुषों का स्वभाव दयालु और उदार होता है। पांचमो से स्वराज की नींव, एना કેટલાક પ્રશ્નો જોઈએ। रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण यह था कि बहुत प्रयत्न करने के बाद भी स्वराज उनके हाथ में नहीं आ रहा था। बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था? बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा था कि समाज में छुआछूत, ऊंच नीच और विलासप्रियता के होते हुए हमें स्वराज नहीं मिल सकता। स्वराज केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही मिल सकता है। तीजो प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? उत्तर, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को फिर से जीत लेने की प्रतिज्ञा की थी। चौथा प्रश्न, जूही सेनापति तात्या का पक्ष क्यों लेती है? उत्तर, जूही सेनापति तात्या का पक्ष लेती है क्योंकि वह उससे प्रेम करती है। तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों हो उठे? रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या को सरदार कहकर संबोधित किया। रानी के मुंह से अपने लिए यह संबोधन सुनकर तात्या लज्जित हो उठे। तो કેટલા વધારાના प्रश्नों, जूही देश के लिए कैसे किसे ठुकरा सकती है? तो जूही देश के लिए अपने प्रेमी तात्या साहब को भी ठुकरा सकती है। जूही अपनी कला को किन के गले की फांसी नहीं बना सकती? तो जूही अपनी कला को विलासिता में डूबे हुए लोगों के गले की फांसी नहीं बना सकती। रोज कौन था? रोज अंग्रेजी सेना का सेनापति था। युद्ध में जाते समय रानी को क्या लगता है? उत्तर, युद्ध में जाते समय रानी को लगता है कि यह उनके जीवन का अंतिम युद्ध है।
युद्ध में जाते समय मुंदर ने रानी के सामने क्या इच्छा प्रकट की? युद्ध में जाते समय मुंदर ने रानी के साथ रहने की इच्छा प्रकट की। छठ्ठું છે ચેપ્ટર મેરી બીમારી સામાન્ય લે, એમાં છે આપણો પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ। सामान्यतः लेखक को कौन कौन सी बीमारियां रहती थी? तो उत्तर है सामान्यतः लेखक को जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द आदि बीमारियां रहती थी। बीजो प्रश्न, लेखक एलोपैथी का उपचार क्यों नहीं कराते थे? उत्तर, लेखक एलोपैथी का उपचार नहीं कराते क्योंकि वह महंगा होने के कारण उनकी शक्ति से बाहर था। तीजो प्रश्न, बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने कौन सा उपचार बताया था? उत्तर, मुक्ता प्रसाद जी ने बच्चन जी को लुई कोने के पानी के प्रयोग से रोग दूर करने का उपचार बताया था। विश्राम तिवारी क्या क्या कहा करते थे? तो विश्राम तिवारी कहा करते थे कि मार के पीछे भूत भागे। श्यामा ने कौन सा ब्रह्मास्त्र छोड़ा? तो श्यामा ने यह ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि जब तक बच्चन जी अपनी तबीयत डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे तब तक वह खाना नहीं खाएंगे। तीजो प्रश्न, डॉक्टर का नुस्खा बच्चन जी को कैसा लगा? उत्तर, डॉक्टर का नुस्खा बच्चन जी को मौत का परवाना लगा। चौथा प्रश्न, बच्चन जी को मरने की अपेक्षा जीना कठिन क्यों लगा? तो बच्चन जी को मरने की अपेक्षा जीना कठिन लगा क्योंकि बीमारी के कारण उनकी आर्थिक तकलीफें बहुत बढ़ गई थी। रोगशैया पर पड़े पड़े बच्चन जी को कौन सी चिंता सता रही थी? तो रोगशैया पर पड़े बच्चन जी को सिर पर बड़ा कर्ज चुकाने की चिंता सता रही थी। पैसे नहीं है तो जाओ मरो, डॉक्टर मुखर्जी के इन शब्दों का बच्चन जी पर क्या असर पड़ा? पैसे नहीं तो जाओ मरो, डॉक्टर मुखर्जी के इन शब्दों का बच्चन जी ने अपने लिए चुनौती समझा। उनमें रोग मुक्ति के लिए नया उत्साह पैदा हुआ। बच्चन जी तपेदिक की बीमारी से कैसे मुक्त हुए? बच्चन जी लुई कोने के पानी के प्रयोग से तपेदिक की बीमारी से मुक्त हुए। किसके मतानुसार बीमार होना अपराध है? गांधी जी के मतानुसार बीमार होना अपराध है। पति की किस बीमारी का नाम सुनते ही श्यामा जी कांप उठे? तो पति की तपेदिक की बीमारी का नाम सुनते ही श्यामा कांप उठे। 7वां चैप्टर से सूरदास के पद। पहला प्रश्न, जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर कहाँ आता है? तो जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर जहाज पर आता है। बीजो, सूरदास के मधुर कर को करेल फल क्यों नहीं भाता? उत्तर, सूरदास के मधुर कर को करेल फल नहीं भाता क्योंकि उसने कृष्ण भक्ति का अम्बुज रस चख लिया है। तीसरा प्रश्न, बालकृष्ण के मुख पर किसका लेप किया हुआ है? उत्तर, बालकृष्ण के मुख पर मक्खन का लेप किया हुआ है। सुर धन्य क्यों हुए? तो सुर धन्य क्योंकि कृष्ण की दुर्लभ छवि के दर्शन हो गए थे। सूरदास का मन कहाँ सुख पाता है? उत्तर, सूरदास का मन केवल कृष्ण की भक्ति में सुख पाता है। सूरदास ने कृष्ण को किसके समान बताया? तो सूरदास ने कृष्ण को कामधेनु के समान बताया। कृष्ण की झूलती हुई लटों कैसी लग रही थी? कृष्ण की झूलती हुई लटें ऐसी लग रही थी जैसे मधु पीकर भोरे मदोन्मत्त हो रहे हैं। चौथा प्रश्न, कृष्ण किसके समान निर्मल है? श्री कृष्ण गंगा के समान निर्मल है। भोरा किस रस को चाव से बकता है? तो भोरा कमल रस को चाव से चखता है। कृष्ण के सिर के दोनों ओर क्या लटक रही है? कृष्ण के सिर के दोनों ओर लटें लटक रही है। 8वां से गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण कैसा है? उत्तर, गुलमर्ग ऊंचाई पर पहाड़ियों से घिरा हुआ ठंडा स्थान है। बीजो प्रश्न, लेखक ने गुलमर्ग के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का क्या कारण बताया? उत्तर, लेखक ने गुलमर्ग के अपार आकर्षण को उसके साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ाने का कारण बताया। तीजो प्रश्न, खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर किस बात की प्रतीक्षा करने लगा? खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर इस बात की प्रतीक्षा करने लगा कि वह उस तक पहुंचे और उसे अपने में लपट ले। तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को कैसा अनुभव हुआ? तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसका दम घुटने लगा हो। लेखक को किस बात का अफसोस हुआ? लेखक को इस बात का अफसोस हुआ कि वह बरसाती घटा उसके बराबर नहीं हो सकी।
लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए क्या उपमा दी? लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए पतली पतली नरम बाहों की उपमा दी। 9वें चैप्टर से निर्भय बनो। एमो पहलो प्रश्न, प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को कहाँ पर एकत्र होते हैं? प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को परमानंद नदी के उस पार बालूचर पर एकत्र होते हैं। स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर क्या करते हैं? स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं। मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में किस भारतीय महापुरुष का नाम दिया? तो मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में महात्मा गांधी का नाम लिया। पक्षी को किसने गोली मारी थी? तो पक्षी को गोली सब डिप्टी साहब ने मारी थी। प्रियोदा के मुंह से हॉल्ट क्यों निकला? साला शब्द के प्रयोग पर इब्राहिम को इसकी गलती का एहसास कराने के लिए प्रियोदा के मुंह से हॉल्ट शब्द निकला। कालू ने मनमोहन के बारे में प्रियोदा से क्या कहा? कालू ने मनमोहन के बारे में प्रियोदा से कहा कि यह बहुत तेज लड़का है और आपके क्लब का सदस्य बनना चाहता है। मनमोहन मोना को घर पहुंचाने के लिए कौन उसके साथ गया और क्यों? तो मनमोहन अकेले घर जाने में डरता था, इसलिए प्रियोदा उसके साथ गया। उजड़े हुए मकान में पहले क्या होता था? उजड़े हुए मकान में पहले मुर्दों की चीरफाड़ होती थी। प्रियोदा के अनुसार 10 का काम करने वाला भूत से क्यों नहीं डरता? प्रियोदा के अनुसार 10 का काम करने वाला भूत से नहीं डरता क्योंकि वह तो खुद भूत होता है। मुठिया वसूलने कौन चाहता है? मुठिया वसूलने प्रियव्रत राय चाहता है। मनमोहन किसके नाम से डरता है? मनमोहन हैजा के नाम से डरता है। कालू किसे तेज लड़का बताया? तो कालू ने मनमोहन को तेज लड़का बताया। मनमोहन पढ़ लिख कर क्या बनना चाहता था? मनमोहन पढ़ लिख कर वकील बनना चाहता था। महात्मा गांधी को लोग क्या समझते हैं? महात्मा गांधी को लोग भगवान का अवतार समझते हैं। 10वां चैप्टर જોઈએ। भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा है? तो भारत में हिमालय के समान मनोहर पर्वत तथा गंगा जैसी पवित्र नदियां हैं, इसलिए इस देश को प्रकृति का लीला स्थल कहा है। भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया? भारत संसार का सबसे पुराना देश है, इसलिए उसे वृद्ध कहा गया। विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार कहाँ से किया? तो विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार भारत से किया। आर्य किन किन विषयों के आचार्य थे? आर्य सभी तरह की विद्याओं तथा कला कौशल्य में आचार्य थे। आचार्यों की संतान आज किस स्थिति में जी रहे हैं? आर्यों की संतान आज अधोगति में जी रही है। आर्य की क्या विशेषताएं रही है? तो आर्य हमेशा स्वार्थ से अधिक परोपकार को महत्व देते हैं। वे मोह से दूर रहते हैं और निष्क्रिय रहना पसंद नहीं करते। भारत किसका गौरव है? तो भारत भूलोक का गौरव है। भारत किसका सिरमौर है? तो भारत संसार का सिरमौर है। भारत किसका प्रथम भंडार है? तो भारत भगवान की भवभूतियों का प्रथम भंडार है। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों आज આપણે આ વિડીયો દ્વારા 10 પ્રશ્નો એટલે કે 10 પાઠ સુધીની માહિતી છે લઈએ। ત્યારબાદ આ 11મો પાઠ છે એ આપણે લેશું, પરંતુ એ નવા વિડીયોમાં, કારણ કે વિડીયો ખૂબ લાંબો થઈ જશે, એટલે કે બીજા ભાગની અંદર છે આપણે અવશ્ય જોઈશું। જો તમને વિડીયો સારો લાગે તો ચેનલ લાઈક શેર કરજો અને નવા હો તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને આવા ટેટ ટાટ કે અન્ય વિષયના વિડીયો છે તમને મળતા રહે। હવે જોઈએ આપણે ચેપ્ટર 11 થી અન્ય 20 સુધીના જે પ્રશ્નો છે તેની ચર્ચા અન્ય વિડીયોમાં કરશું। ત્યાં સુધી દરેકની પરીક્ષાની શુભેચ્છાઓ।